ہے یہ جسے جلا رہے ہو؟ ہاں، اس کاغذ پہ کیا لکھا ہے؟ دیکھنے دو مجھے۔ تعویذ ہے۔ تعویذ؟ ہاں۔ پھر اسے کھا کیوں رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خدا کا شکر ہے اب مجھے آرام ملا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا تجربہ کامیاب رہا۔ تیرا مطلب کون سا تجربہ ہے؟ ہاں، یہ کہ میرا گھوڑا ڈنڈے میں بدل جائے۔ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ تمہیں بتا تو رہا ہوں کہ تعویذ تھا گھوڑے کو ڈنڈے میں بدلنے کا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ یہ دیکھ، یہ گھوڑا یا ڈنڈا؟ آخر یہ تعویذ ایک دن میرے ہاتھ ضرور لگے گا۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے دوری اختیار کر، ورنہ تو اچانک گدھے میں بدل جائے گا۔ ایک دن ضرور میرے ہاتھ لگے گا۔ لوگ کیوں روزانہ اپنے مال و اموال سے محروم ہوں جبکہ تمہیں ان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے؟ خدا آپ کو طویل عمر عطا فرمائے میرے آقا، اور آپ کا مقام بہت بلند ہو۔ لوگ بہت خوشحال ہیں۔ کیسے خوشحال ہیں؟ مجھے خبر ملی ہے کہ شہر کے بازار میں چوری ہو گئی ہے۔ لیکن مجرم پکڑا گیا ہے میرے آقا۔ جاننا چاہتا ہوں کہ مجرم کون ہے۔ خدا نے اسے بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے میرے سرکار، لیکن وہ اچانک گمراہ ہو گیا۔ شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ تمہیں ان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے۔ جان لینا اگر رعایا کا سکون برباد ہوا تو رحم کیے بغیر تیرے ہاتھ پیر بیچ شہر کے بازار میں کاٹ دوں گا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ رکنا ذرا ساتھ۔ حکم کرے میرے آقا۔ جو کام تمہیں سونپا گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ جب میں اچانک گھر میں گھسا، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ آدھا ٹکڑا وہ کھا گیا اور آدھا اس نے جلا دیا۔ آدھا ٹکڑا کھا گیا؟ کس لیے؟ کہنے لگا کہ تعویذ ہے جناب، جو گھوڑے کو ڈنڈے میں بدل دیتا ہے۔ بے وقوف کو نظروں میں رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابا وہاب۔ کیا پتھروں کو ہٹانے میں تمہاری مدد کروں؟ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہ کیا بات ہے؟ قاضی جنید ضرور میری زمین ہڑپ کرے گا۔ کیا تم خلیفہ تک میری شکایت پہنچا دو گے؟ چل میرے گھوڑے چل۔ کھا میرے گھوڑے، کھا، لے لے کھا۔ تم نے کتنے عرصے سے پھل نہیں کھائے ابا وہاب؟ جب سے خلیفہ نے میرے سامنے نہیں رکھے تھے۔ جتنی کوشش کر سکتا ہے کر، کھا لے، کمی پوری کر لے۔ پھر یہ پورا تھال میرے لیے کافی ہے۔ دھیان سے ابا وہاب، زیادہ پھل کھانا نقصان دہ ہے۔ لیکن میں نے تو یہ خلیفہ سے سیکھا ہے۔ کیا تم تیار ہو اس سال میرے ساتھ حج پر چلنے کے لیے؟
आपके साथ हज पर चलूं? हाँ, हज पर चलो बहाब। तुम्हारा साथ होगा तो रास्ता आराम से कट जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे आका? अपने घोड़े का क्या करोगे? हम अपने घोड़े को भी साथ रखूंगा। नहीं, ये सोच दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा घोड़ा यहीं अस्तबल में रहेगा। नहीं, तुम जिसे चाहो साथ ले जा सकते हो, मैं जिसे चाहूँ साथ ले जाऊंगा। अफसोस है तुम पर अबा वहाब, खुद को खलीफा से मिलाते हो। क्यों ना मिलाऊं? मुझ में और खलीफा में थोड़ा ही तो फासला है। जानते हो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक मूसा और हारून के ताल्लुक जैसा है। हाँ, हो सकता है अबा वहाब, ऐसा हो सकता है। क्या मैं हज की नियत कर लूं? बेशक। मनासिक के हज जानते हो अबा वहाब? लोग जैसा करेंगे मैं वही करूंगा मेरे आका। लोग क्या करते हैं अबा वहाब? जो खलीफा कहेगा मैं भी वही करूंगा। नहीं, तुम तक कोई नहीं पहुंच सकता बाबा, कोई नहीं पहुंच सकता। जाफर की जमीन अगर तुम्हारी हो जाती है तो अपने घर को और वसी करके इसकी कीमत बढ़ा देना। चाहा था मैंने हकम, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वो कई मुश्किलात में घिरा हुआ है, उसको लालच दो, मकसद हासिल हो जाएगा। तुम्हारी नजर में उस जमीन की क्या कीमत होगी? ज्यादा से ज्यादा 50 दिनार। 50 दिनार दे दूंगा मैं उसे। यकीनन फिर वो राजी हो जाएगा। अगर वो ना माना तो फिर इस सूरत में उसके हाथ में डंडा दे देना, ताकि अबा वहाब की तरह गलियों में भागता फिरे। तुम्हारी क्या राय है? क्या हम जल्द अज जल्द अपनी इस जमीन पर खूबसूरत घर तामीर कर लें ताकि सुकून से रहें? हाँ, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली जाफर। सच में दिल से कह रहा हूँ, तुम्हें आराम की जरूरत है और फिर ख्वाहिश भी है तुम्हारी। बहुत है। मैं तो उस वक्त ही सुकून पाऊंगी जब हमारा ये खूबसूरत घर मुकम्मल हो जाएगा। इसमें परेशान होने की क्या बात है जाफर? क्या तुम इस झोपड़ी में रहने पर खुश हो? कसम खाता हूँ कि अब मजीद तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा जरूर। हुजूर, सब चीजें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हैं। हज का कारवां आइंदा चंद रोज में रवाना हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम भी इस कारवान हज के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपकी गैर मौजूदगी में हुकूमत कौन संभालेगा? तुम? मैं? बैठो इब्न खालिद, बैठो। क्या कभी तुम्हें हुकूमती उमूर की सरपरस्ती नहीं सौंपी? क्यों नहीं हुजूर? क्या माजी में रया के उमूर का काम तुम्हारे सुपुर्द नहीं था? हाँ जनाब, ऐसा ही था। क्या मेरे बाप की मौत के बाद तुम निगरान नहीं थे? आपके बाबा का ताबेदार था मैं। ऐसा ही था। फिर इन तमाम सिफतों के बाद पूछते हो कौन रया के उमूर की सरपरस्ती करेगा? लेकिन आपने हुजूर वादा किया था मुझे साथ ले जाने का। लोगों को बगैर सरपरस्त के नहीं छोड़ सकता। तुम और तुम्हारा बेटा जाफर बखूबी इस काम को संभाल सकते हो। मेरे आका रशीद, सुना है कि अबा वहाब को भी आप अपने साथ हज पर ले जा रहे हैं। मैंने सोचा किसी को साथ ले लूं ताकि तन्हाई महसूस न हो और सफर की थकावट भी दूर हो जाए। और फिर इन बातों के अलावा वो मेरा रिश्तेदार भी है। मैं चाहता हूं कि आपकी शान और शौकत बरकरार रहे। अबा वहाब आपकी शान घटा देगा, वो भी हज के मौके पर, जहां खास बंदगान खुदा का इज्तिमा होता है। ऐसा हो सकता है। اللهم ارزقني حج بيتك الحرام هذا العام وفي كل عام واجعلني من الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. وصل على نبيك وآله الطاهرين يا أرحم الراحمين.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काजी साहब, ये घर मेहमानों के लिए आबाद है। लेकिन मैं तो यहाँ कोई घर नहीं देख खुदा रहा। पर भरोसा है, नहीं है तो बन जाएगा। अगर मैं तुम्हें एक मशवरा दूं तो मान लोगे? काजी का हुक्म अदालत के हुक्म के बराबर है, कैसे नहीं मानूं? यानी तो तुम्हें कबूल है? मकसद बयान करके हुक्मनामा नहीं दोगे? मैंने ये सोचा है जाफर कि इस जमीन को खरीद कर अपने घर के हिस्से में शामिल कर दूं और उसमें एक बाग बनाऊं। खुदा ने खरीदो फरोख्त को हलाल करार दिया है और रबा को हराम। क्या कहते हो? मैंने जो फैसला कर लिया है वो नहीं बदलूंगा। क्या फैसला किया है? यही कि हरगिज इस जमीन को नहीं बेचूंगा। हाँ, अगर मैं 50 दीनार इसके एवज दूं तुम्हें? नहीं 75 दीनार? नहीं 100 दीनार? बिल्कुल नहीं। ओ शख्स, मैं 100 दीनार इस जमीन के तुम्हें दे रहा हूँ जिसकी कीमत सिर्फ 30 दीनार से भी ज्यादा नहीं, फिर भी नहीं मानता? मैंने कह दिया कि मुझे जमीन नहीं बेचनी किसी भी कीमत पर काजी साहब। कितना बदबख्त पड़ोसी है। मैं किस बेवकूफ से बात कर रहा हूँ, इसने तो मुझे पागल कर दिया है। जुनैद, हुक्म मेरे आका। क्या तुम समझते हो कि अब वहाब वाकई पागल है? मैं माजरत चाहता हूँ मेरे आका। ऐसा शख्स जो डंडे पर सवार होकर गलियों में घूमता फिरे, उस पर कोई शक है? मुझे नहीं पता क्या चीज सबब बन रही है कि उस पर शक करूं। कभी कभार तो ऐसे काम कर जाता है कि कोई दानिश्वर भी न कर सके। खुदावंद आपकी इज्जत में इजाफा करे और आपको लंबी उम्र अता करे और अबा वाहब को भी सलामती अता फरमाए। ये बात मुझे हैरान कर देती है कि कैसे एक ही रात में एक फकीह और नामवर आलिम दीन दीवाना बन जाए और लोगों के दरमियान मजाक बन जाए। इस बारे में तुम क्या सोचते हो? अल्लाह ताला है जो सब कुछ बदल देता है लेकिन खुद नहीं बदलता। वही जात कादिर मुतलक है मेरे आका। क्यों बेतवज्जोही से खड़े हो अबा वहाब? मुझे नहीं देखा क्या? क्यों नहीं, देख रहा हूँ। फिर क्यों खड़े हो? रास्ता क्यों नहीं दे रहे कि मैं यहाँ से गुजर जाऊं? रास्ता तुम्हें देना होगा, मुझे अफसोस नहीं। है तुम पर। मैं खलीफा का वजीर हूँ। और मैं खुद खलीफा हूँ। काजी जुनैद को देखा है? कहाँ है वो? जुनैद, क्या चाहते हो कि वो तुम्हें भी गुमराह कर दे? उसके सर पर अमामा और काजी का लिबास जेब तन है अबा वहाब। काश जो तुम कह रहे हो वो उसका अहल होता। देखो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसका मजाक ना उड़ाओ। अगर खलीफा उससे राजी हो जाता है तो फिर वो काजी उल कुज़ात बन जाएगा। अफसोस है उस कौम पर जिसका काजी उल कुज़ात फासिदों में से हो और हुक्मरान बेवकूफों की जमात से। खुदा हमें उनके शर से महफूज रख, खुदाया हमें ऐसे लोगों से दूर रख, खुदाया हमें ऐसे लोगों से निजात दे दे, खुदा हमें दूर रख।